अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है ड्यूट्रॉन, और ये मैं क्रेन की बुक से देख रही हूँ इस टॉपिक को। इवेंचुअली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कुछ हम इल्मी वाली बुक से भी देखेंगे, बट राइट नाउ दिस इज़ क्रेन। सो द ड्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन मीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ड्यूट्रियम, that is the atom deuterium that has one proton and one neutron and has one electron around it, so it's a isotope of hydrogen. And the reason why we're studying this particular nucleus is that it has that minimum, all those minimum particles that are necessary to study a nucleus. So it's like the you can say it's the deuteron is as important in nuclear physics as hydrogen in atomic physics. So in atomic physics, when we were studying atom, what was necessary to study an atom was one proton or maybe one nucleus that has positive charge and an electron. So we were studying the electromagnetic interaction between these two entities, and that was the at the minimum the possibility of an atom कि आपके पास एक न्यूक्लियस हो और एक इलेक्ट्रॉन हो. So that was the hydrogen atom, the most studied atom in atomic physics. And in nuclear physics we need for the study of nucleus we have two particles that lives inside the nucleus. So what is the smallest nucleus with both of those two particles? The answer is deuteron. ठीक है, deuteron is a nucleus that has one proton and one neutron. It's a stable nucleus. We will see that it disintegrates very easily by just giving a small amount of energy, but then it's not like it's a bound system. So the nucleus exists, right? So we're studying deuteron. Okay, so the deuteron consists of a neutron and a proton. A neutral atom of hydrogen, H2, is called deuterium. See, so atomic form में इसको deuterium कहेंगे, and when you remove one electron, it's deuteron. It is the simplest bound state of nucleons and therefore so simplest bound state है, ठीक है. So इससे complex bound states पे ज़ाहिर है heavy nuclei आएंगे, and therefore gives us an ideal system for studying the nuclear interaction. So this is an ideal particle for nuclear physicists. The deuteron should be what the hydrogen atom is for atomic physicists, just as the measured Balmer series of the electromagnetic transitions between excited state of hydrogen led to understanding the structure of hydrogen, so should the electromagnetic transitions between the excited state of deuteron. ठीक है, सो यानी ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं उनको हम स्टडी करके तो हम न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. बट व्हाट हैपन इज़ दैट unfortunately there is no excited state of deuteron, so it's a very weakly bound system, and the only excited state is unbound system. So you need, as you even give a small amount of energy to the deuteron, so like even so if you give even a small amount of energy to this deuteron, what will happen is that it separates into proton and neutron, an unbound system. So there is no excited state of deuteron nucleus. See, so that's an unfortunate thing, but we still can find something from it, and that something will be we want to find the potential that there exists between one proton and neutron. We want to find the nuclear potential, the strength of it, and we will see that it will be easy for us to find out
that by using simple Schrödinger equation. So before that, there are some we know there are some practically the quantities that we can find practically about the nuclei. So one of those property is the binding energy of the nucleus, the energy that we use to break the nucleus up, or the energy that is liberated when you make up the nucleus. So that is binding energy. So ये एनर्जी ज़ाहिर है हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, एंड वी studied the method for finding that. Before studying the method for finding the binding energy, we study also the method for finding the mass of a nucleus, right? So one of the method was this, I think, doublet method. This was called the doublet method, in which we find the mass of a particular atom or nucleus by the difference of two compounds that has that atom, that nucleus in it. So for example, if you find out if you want to find out the mass of deuteron, so these this compound C6H12 and C6D6. so D6 का मतलब है कि अब यहाँ पर सो यहाँ से अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास C6 तो यहाँ कॉमन है, H12 एंड H6 में का जो डिफरेंस है वो बेसिकली ये आ रहा है. तो यू नो द मास ऑफ प्रोटॉन और द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, एंड यू कैन फाइंड द मास ऑफ ड्यूट्रॉन. ठीक है, सो दैट कम्स अबाउट from the first difference we find mass of deuteron to be 2.014 something, and then plus minus this uncertainty that comes from the measuring instrument. And similarly this another so this is one way to find the mass of deuteron. Another way is to find the mass with the help of these two compounds. So just to re-verify what we found in the first method, if it's right or not. So अब हमने एक और कंपाउंड लिया, so C5D12 and C6D6. So we know again the mass of carbon and the mass, so we know the mass of carbon. Then you have D12 and D6. If you minus those, you get D6. सही है, so D6. So you have 6 molecules of deuteron, and the difference of these two is this. So इस सारी क्वांटिटी को अगर आप 6 से डिवाइड कर दें, so you get the mass of, so second method से mass of deuteron कुछ ये आता है जो कि except at the end of these two values हमारे पास in very good agreement, these two values are in a good agreement. So this is the accepted mass of deuteron now. Now we know the mass of deuteron. We can find the binding energy of deuteron by using the binding energy formula. That is, the binding energy is equal to the mass of hydrogen, that is mass of proton, mass of neutron minus the mass of deuteron. See, so mass of deuteron हमें पता है, mass of neutron और proton भी पता है. So we can put all these quantities multiply by c square. By the way, c square से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप 931 MeV से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ c square into MeV. So do that and you will get the binding energy 2.22463 MeV. सही है. तो अब ये है इसकी बाइंडिंग एनर्जी और ये है ड्यूट्रॉन का मास. रिमेंबर, बाइंडिंग एनर्जी जो है, मास जो है वो सिंपली ड्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये या एज अ होल न्यूक्लियस जो ड्यूट्रॉन का मास है ये वो है. दिस बाइंडिंग एनर्जी मीन्स दिस मच एनर्जी इज़ नीडेड टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन into separate particles, right? So this is the binding energy, and the thing is that the binding energy is we can see that the binding energy has a very small value compared to what we know from the binding energy curve. हमने कहा था कि binding energy curve में most of the nuclei lie around at this was I think 8.8 MeV, the maximum value, and then most of the nuclei are around 8 MeV, 7.5, 8 MeV. So most of the nuclei lie here. There are very small amount of nuclei that were in this range,
one of them is of course deuteron. So deuteron has 2.2 MeV energy, that is so this is for the two particles, right? This is the total binding energy. Binding energy per nucleon अगर हम निकालें, so binding energy per nucleon will be the half of this ना, 2.2 को आप 2 से डिवाइड कर दो, so 1.1 MeV समथिंग जो है वो बाइंडिंग एनर्जी होगी per nucleon. So this is again this is binding energy per nucleon. So ये binding energy कर्व में हमारे पास binding energy per nucleon थी, और ये थी कुछ 8 7.5 7 से लेके 8 तक अराउंड इतनी MeV पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी थी फॉर दी स्टेबल न्यूक्लियर. बट ड्यूट्रॉन के लिए ये एनर्जी 1.1 MeV है, विच इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन ब्रेक ड्यूट्रॉन अपार्ट वेरी इजीली. सो कहता है we can also determine this binding energy directly by bringing a proton and a neutron together to form deuteron. So that we can also do simply by doing this. तो आपके पास ड्यूट्रॉन बनेगा और गैमा रे एमिट होगा. सो जो भी एनर्जी होगी इसके बनने से जो एनर्जी निकलेगी वो गैमा रे की फॉर्म में निकलेगी, और ये गैमा रे जो है कहता है दिस विच इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व एनर्जी ऑफ फोटोन द बाइंडिंग एनर्जी. सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी हम इस फोटोन की एनर्जी से निकालेंगे, एंड फोटोन लेस अ स्मॉल रिकॉइल करेक्शन. जाहिर है कि ये ड्यूट्रॉन जब बनेगा तो सम ऑफ द रिकॉइल एनर्जी जो है वो इसके पास भी होगी. सो लेकिन ये कि आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ काफ़ी जो है वो गुड एग्रीमेंट में है. 2.2245 एंड ये 463 है, ये 4589. ठीक है, तो सो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अप टू 4 डिजिट्स हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू आ रही है. अनदर मेथड भी देख लें कि जिसमें हम ड्यूट्रॉन को डिसइंटीग्रेट करके बाय बम्बार्डिंग अ फोटोन उसको ब्रेकअप आउट करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और कहता है द मिनिमम गैमा एनर्जी दैट अकम्प्लिश दिस प्रोसेस इज़ इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन. ठीक है, आप व्हाट इज़ द मिनिमम gamma ray photon energy that can do this reaction, that energy is observed to be this value. So the energy is now established as 2.224 MeV with some correction. As we discussed, the average binding energy per nucleon is about 8 MeV. The deuteron is therefore very weakly bound compared with the typical nuclei. Let's see how we can analyze this result to study the properties of deuteron. Now, to simplify the analysis of the deuteron, we will assume that we can represent the nucleon potential as a 3-dimensional square well. So this is our first approximation कि हम उसको सबसे simplest form में न्यूक्लियन इंटरेक्शन को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो इंटरेक्शन है, जाहिर है ये एक पोटेंशियल एनर्जी है जो इनके बीच में है. सो इसको हम टू द सिंपलेस्ट लेवल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल. ठीक है, सो वी कैन से दिस अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल की डेप्थ जो है वी नॉट, दिस डेप्थ ऑफ दिस पोटेंशियल वी वांट टू फाइंड आउट दैट पोटेंशियल डेप्थ. ठीक है, और ये आपके पास इसका 0 लेवल है, और इसके अंदर ये जो सारी जगह यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो बाउंड है. ऑफ कोर्स यहाँ पर करके, या मतलब इस जगह पर आपने देखा होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं तो उसी जो भी हमारा वो सिस्टम होता है उसकी एक्साइटेड स्टेट्स भी यहाँ पे आ रही होती हैं. ठीक है, उसकी कुछ ग्राउंड स्टेट होती है, फिर एक्साइटेड स्टेट होती है, और वो सारी एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे आती हैं अनलेस कि आप उसको इतनी एनर्जी दे दें कि वो सिस्टम जो है वो अनबाउंड हो जाए और वो यहाँ से बाहर निकल जाए इस वेल से. इस वेल के अंदर जो है वो यानी उस पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सारी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकती हैं. अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि ये जो डैश लाइन है, दिस डैश लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन. आई विल शो यू कि ये डैश लाइन यहाँ पे क्यों बनाई हुई है. ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि अच्छा अब ये जो है ये एक जाहिर है 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल होगा,
सो यहाँ पे हमें ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है, बट ये 3 डायमेंशनल में ये जो स्क्वायर वेल है ये है, और ये इसका 0 लेवल है। तो और यहाँ से r इंक्रीज़ हो रहा है, तो r जो चीज़ है ये हमारे पास r है, जो कि उसका रेडियस होगा न्यूक्लियस का, कैपिटल R, और ये जो स्मॉल r है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो स्मॉल r है बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो यानी हाउ वन पार्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। वन पार्टिकल द डिस्टेंस ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टिकल, ठीक है। सो दिस इज दैट डिस्टेंस हाउ इट इज़ चेंजिंग। सो एज इट अप्रोचेज आर एंड गो बियॉन्ड दैट द डिस्टेंस इज़ इनफ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और वो न्यूट्रॉन का हिस्सा नहीं रहते। इस डायरेक्शन में एनर्जी है, और एनर्जी में यहाँ पे देखें कि बाइंडिंग एनर्जी और न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, दिस इज़ नेगेटिव, ऑल्सो दिस पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, जो कि ये बता रहे हैं कि अट्रैक्टिव है। बाइंडिंग एनर्जी और न्यूट्रॉन नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि ये बाउंड स्टेट है, और पोटेंशियल नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। सो वी टेक the function v of r as, and also there is another thing that we are assuming, which is not really right, or it's an approximation, that the potential is central. So the potential we're taking is central, that is we're assuming that the force, so we're assuming that the force between proton and neutron is a central force. So it acts along the line joining the two particle and not in any other direction, सही है। सो इसका मतलब है कि वो जो भी फोर्स है उसकी फंक्शनल फॉर्म सिर्फ r पे डिपेंड करती है, एंड वो किसी थीटा फाई पे डिपेंड नहीं कर रही। ये सारा स्फेरिकल एक सिस्टम है, बट ये कि जो फोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल, ये दोनों जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल है और सेंट्रल फोर्स है, and they only act along the line joining the two particles, and so there will be no involvement from the wave involvement of the wave function from theta and phi perspective. So this is a assumption which is not strictly true, as we have seen in the properties of nuclei. हमने properties I think property of the nuclear force में हमने स्टडी किया था, that this force is not central, it has tensor component, but then we're not really at this point we just want to find out the value of this potential, what is the depth of this potential, the value of this. And we will see that we can find out that by using some experimental values that we can find about the neutron. So v of r we assume that is minus v naught, as we are in this region where r is less than capital R, it is minus v naught, and as we go beyond this the value of v is 0. So this is our function. This is of course an oversimplification, but is sufficient for at least some qualitative conclusions. सही है, जो qualitative conclusions हम निकालेंगे वो हम देखेंगे। Here R represents the separation between proton and neutron. सही है, this R is the separation between these two particles. Let's assume the lowest energy state of neutron, just like the lowest energy state of hydrogen, has L is equal to 0. तो यहाँ पे वो जो हम कह रहे हैं कि so this is our equation, श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम जो ये u of r है, अच्छा इसको हम ना इल्मी से सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस L जो है ये 0 हमने लिया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू find out the lowest ground energy state of the atom of the nucleus. So we are taking L to be 0, बिल्कुल ऐसे जैसे हम हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन एटम में भी L 0 लेते हैं। सो बिल्कुल उस तरह ही तो एक तो ये कि हमारा जो थीटा फाई वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा,
और अगर वो थीटा वाई एल एम जो होते हैं, सो वाई एल एम जो है ये वैसे गायब हो जाएंगे, गायब तो नहीं होंगे, इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये चेंज नहीं हो रहे ना, थीटा और फाई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर लाइक चेंज नहीं हो रहे तो ज़ाहिर है इनकी वैल्यू एक कांस्टेंट थी जो कि l इंटू एल प्लस वन, देयर सम वैल्यू 2m समथिंग हियर, तो ये वैल्यू आती होती ना उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, तो वो वैल्यू l इज इक्वल टू 0 पुट करने से वैसे ही 0 हो जाएगी। सो यानी इसकी l वाली सारी जो वैल्यू हैं वो सारी हमने ख़त्म कर दी अपनी इक्वेशन से। हमारी इक्वेशन सिंपली r डिपेंडेंट है। तो अभी हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी उसमें हम थोड़ी सी उसको हम देखते हैं फ्रॉम इल्मी। सो इल्मी, सो ये रहा आपके पास। सो इसमें आप उसने जो है वो पहले इसको यूँ लिया हुआ है कि इसने इसको पहले जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिया हुआ है श्रोडिंगर इक्वेशन को, और फिर इसने ये कहा कि इसकी जो थीटा और फाई डिपेंडेंस है वो हम नहीं ले रहे, सो वी जस्ट टेक दिस पार्ट विच डिपेंड्स ऑन आर। सो ये वही इक्वेशन है, बस m यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आपने रीअरेंज कर लेना, दिस इज़ द सेम इक्वेशन, आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 1.3 देख लें। एक और चीज़ यहाँ पे जो है जो कि मैस है, तो यहाँ पे जो मैस आ रहा है m, ये किस पार्टिकल का मैस होगा? सो ये जो मैस है ये बेसिकली रिड्यूस्ड मैस है। ये मैस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों पार्टिकल की पोजीशन को एक दूसरे के लिहाज से देख रहे हैं, रिलेटिव टू वन अनदर। सो देयरफॉर वी आर नॉट टेकिंग द mass of the deuteron as itself, but we are taking the reduced mass. You can think of it as we are dealing with the two body problem na. So we have to, if we want we want our equations to be consistent with relativistic effects, that is relativistic effects उस तरह कि आपका एक पार्टिकल जो है वो दूसरे के लिहाज से कैसे मूव कर रहा है, तो we must take this as the reduced mass and not the mass of proton or neutron itself. So and also we took L is equal to 0 for the lowest possible energy state which has spherical symmetry and it is independent of theta or phi. So this is the equation now we are going to solve. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया कि फाई ऑफ आर को अज्यूम कर दिया कि दैट इज़ इक्वल टू यू ऑफ आर बाई आर, ठीक है। मैंने इसको एक और फंक्शन कंसिडर कर लिया, तो आप उसका डी फाई बाई डी आर भी निकालेंगे, दैट इज़ 1 ओवर आर डी यू ओवर डी आर, और चूँकि ये प्रोडक्ट है यू भी आर पे डिपेंड कर रहा है और आर जो है वो भी वेरिएबल है, सो इसका आप जो है वो एडिशन वाला रूल लगाएंगे इसके ऊपर, डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन दिस और दिस, ये सारी वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन नंबर 1.3 में पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाती है। सो दिस इज़ द इक्वेशन, इफ़ देयर इज़ नो, इसमें कोई मुश्किल मुझे नज़र नहीं आ रही। इससे फर्दर आपने इस जगह पर क्या किया है फिर, दैट आपने बस इसको अंदर सॉल्व किया है और उसके बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये वैल्यू कैंसिल हो रही है और ये वैल्यू भी कैंसिल हो रही है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आपको ऐसा आ गई। अब इस इक्वेशन को इस तरह लिख लें, 1 ओवर आर को दूसरी तरफ ले जाएं, सो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1.4। अब यहाँ पे हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। सो अच्छा, ये जो भी हमारा फंक्शन है, आपको पता है ना कि जो भी हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका जो फंक्शन होता है, दैट फंक्शन सेटिस्फाइड दी all the properties that a function must satisfy, that is it is finite, उसकी जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पर सो यानी अगर आपके पास किसी जगह पर कोई बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, जैसे हमारे केस में बाउंड्री क्या है कि हमारे केस में एक बाउंड्री जो है वो यहाँ आ रही है कि ये r इज़ इक्वल टू कैपिटल R पे और दिस इज़ r इज़ इक्वल टू 0।
सो ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर हमारे फंक्शन और whatever the function has, whatever form it has, it must be continuous at the boundary, and also not only the function is continuous but also the derivative of the function is continuous. So u of r जो है this should be continuous, and also du over dr on this, in this region and this region, both at this point when r is equal to capital R, this should be continuous. तो and also the function is a finite function, ठीक है. finite इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है infinite range का function तो नहीं है, it's a short range force. Also we know that even the potential energy that comes from the electrostatic interaction is also finite. So if finite function है, infinite नहीं है, so our function should go to 0 as we approach to infinity, ठीक है. So this is true. So यहाँ से हमारे पास कुछ boundary conditions आती हैं, but so first we have two regions. The region where r is less than capital R, दैट इज़ जिस रीजन में आपका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव वी नॉट है. सो दिस इज़ द रीजन व्हेन r इज़ लेस देन कैपिटल R, एंड द रीजन वेयर r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R. सो दीज आर द टू रीजन के लिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी. सो फॉर r इज़ लेस देन R, कैपिटल R, वी हैव so this equals to E, and then this value of V when r is less than R, the value of V is minus V naught. So minus and minus becomes plus, and that is this. So this is the equation, and इसको इसमें आप ये जो वैल्यू है इसको उठा के हम कह रहे हैं दिस इज़ वेव वेक्टर k1 का स्क्वायर. सो k1 विल बी द अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू. सो ये आ गया आपके पास. और सो फॉर r इज़ लेस देन R हमारे पास ये क्वेश्चन बन रही है. फॉर r इज़ ग्रेटर देन R वी हैव v वैनिशेज़ ना, तो v ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास ये क्वेश्चन 1.4 जो है वो ई रह जाएगी, सिर्फ ई रह जाएगा आपके पास. इसमें भी इस सारी चीज़ को हम कह रहे हैं ये k2 है, ठीक है. अच्छा k इसमें देखें कि फॉर बाउंड स्टेट्स अगर हम r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R हम देख रहे हैं. सो इस जगह पर v ज़ीरो है. अगर हम यहाँ पर बाउंड स्टेट लाइक फाइंड करना चाह रहे हैं, सो बाउंड स्टेट फाइंड तो नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब जो कि हम बाउंड स्टेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना. सो हमें पता है कि जो E है, द बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ पर E, ये बाइंडिंग एनर्जी थी ना न्यूट्रॉन की. सो दिस E हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, सो -2.2. तो E जो है वो नेगेटिव है. इस E को हमने यहाँ नेगेटिव रख दिया है. सो इसकी वजह से हमारी क्वेश्चन में यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा. सो हमने K को फिर क्या किया है, K हमारे पास जो है वो, यानी K जो है वो हमारे पास एक वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E के साथ शो होगा फिर, क्योंकि अब E जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमने E का नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया है. तो ये हमने E का नेगेटिव यहाँ पे यूज़ कर लिया है. सो E कैन नॉट बी नेगेटिव. सो E इज़ लाइक मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वो. सो समटाइम इसको K2 यूँ लिखा होगा, K2 का स्क्वायर इज़ -2m E माइनस E. सो सॉरी, K2 इक्वल्स अंडर रूट -2m E ओवर h बार स्क्वायर. तो यहाँ पे E जो है वो आप नेगेटिव पुट करेंगे तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. तो ये K2 जो है वो एक रियल मतलब रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा. इसी तरह ये K1 भी रियल होगा क्योंकि E जो है वो नेगेटिव है और V नॉट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है. V नॉट जो है वो हमने यहाँ पे वो भी नेगेटिव पुट कर दिया है. सो V नॉट पॉजिटिव है और E जो है वो नेगेटिव है, बट E की वैल्यू V नॉट से बहुत कम है. अगर हमने देखा तो हमने देखा था कि यहाँ पे करके न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी आ रही है और V नॉट की वैल्यू ये है. सो V नॉट पॉजिटिव, ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया उसका नेगेटिव, और E जो है वो नेगेटिव है. सो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. सो सो यानी K1 और K2 दोनों जो है वो रियल फंक्शंस हैं. So we are solving both the equations. इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ये. सो ये सोल्यूशन हमें पता है.
जब आपके पास इस तरह की क्वेश्चन हो तो आपका ये सोल्यूशन होता है साइन ऑफ के 1r, बी कॉज ऑफ के 1r, ठीक है। इसी तरह u2 हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन, r इज़ ग्रेटर देन r के लिए हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, दैट व्हेन r गोज़ टू 0 u1 ऑफ r गोज़ टू 0, सही है। सो एज बाउंड्री कंडीशन सेज कि जो कि आपने कहा था कि फाई ऑफ r इज़ इक्वल टू u ऑफ r u ऑफ r ना, ये कहा था ना हमने, इसके नीचे r रखा था। तो आपके पास u ऑफ r जो है इट विल गो टू 0 एज r गोज़ टू 0। सो जब r 0 होगा तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। सो u ऑफ r जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसी तरह व्हेन r गोज़ टू इन्फिनिटी तो u ऑफ r गोज़ टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास अब आ रहा है कि इन्फिनिट पे हमारा पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो जब आप इन्फिनिटी पे जाएँ तो वहाँ पोटेंशियल 0 हो। तो एक तो ये बाउंड्री कंडीशन है, और व्हेन r इज़ 0 u ऑफ r शुड बी 0। सो दूसरी है, सो एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई करें। सो तो आप यहाँ पे r 0 रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। u1 ऑफ r जो है वो 0 है, तो कॉज के 1 यहाँ पर जब आप r रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। सो b आपके पास 0 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह आपके पास जब b 0 होगा तो ये फंक्शन इतना रह जाएगा, और इसमें आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे व्हेन r गोज़ टू इन्फिनिटी u ऑफ r इज़ 0। सो यहाँ से आपके पास यहाँ से आपके पास ये आ गया अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन ऑन दिस वन, ठीक है। सो आपने इसको 0 कर दिया व्हेन r गोज़ टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास ये आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो 1 और माइनस इन्फिनिटी, सो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये आपके पास 0 होगा। जबकि ये आपके पास ई टू द पावर so you can, another way of thinking about this is कि so u of r should be equal to 0 when r goes to infinity. So when r goes to infinity, this function, इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है जो कि इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है? आप देखें तो ये जो e टू द पावर इन्फिनिटी वाला फंक्शन होगा दिस विल गो टू इन्फिनिटी, एंड वो जो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वाला फंक्शन था ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल है। तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, जबकि ये जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिंस फंक्शन इज़ अप्रोचिंग टू 0 एज r गोज़ टू इन्फिनिटी, सो द पार्ट ऑफ इट दैट इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, उसका जो ये कांस्टेंट है ये 0 होना चाहिए, d शुड बी 0, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, बट दिस शुड रिमेन, और ये 0 होना चाहिए क्योंकि हमारा फंक्शन जो है उसने 0 होना है एज r गोज़ टू 0। सो ओनली दिस विल बी प्रेजेंट इन आवर फंक्शन। सो ये आपके पास आ गया इन द रीजन व्हेन r इज़ लेस देन r, ये हमारा वेव फंक्शन है, और जब r जो है वो ग्रेटर देन r है तो हमारा वेव फंक्शन ये है। सो वही हमने कहा था, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिमांड्स अस दैट एट r इज इक्वल टू कैपिटल R बोथ ऑफ दिस फंक्शन शुड बी इक्वल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड ऑल्सो नॉट ओनली द फंक्शन बट द डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, ठीक है। सो फंक्शन को इक्वल रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और उनके डेरिवेटिव लें और उनको इक्वल रखें तो आपके पास ये आ जाएगा।
आप कहते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, ठीक है। इसको ऊपर रख लें और इसको जो है वो डिनोमिनेटर में ले लें, तो आपके पास आ जाता है K1 ए से कैंसिल हो जाता है, या आपके पास आ जाता है कॉट, ठीक है, आर, ठीक है। हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर रखा था कॉन्टीन्यूटी टेस्ट के लिए, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा सिर्फ K2, सही है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास। अब इस इक्वेशन में K1 की वैल्यू रखें, ठीक है, कॉट, ये अगेन K1 की वैल्यू आ गई और ये K2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे याद रखें कि ई की वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे तो नेगेटिव होगी, या तो आप इसको ई के मैग्नीट्यूड के साथ कर लें, या ये इमेजिनरी नहीं होगा, यानी ई हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस वी नॉट। वी नीड दी रिड्यूस्ड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वी हैव दैट, we have to have this value of E which we know, एक्सपेरिमेंट से हमने निकाल लिए 2.2 MeV। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, ये है H है, बाकी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। दिस R, ये R जो है ये भी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2.1 फेमटोमीटर। तो ये भी एक्सपेरिमेंट से आपने देखा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग R की वैल्यू फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो ये वैल्यू रखें, ये वैल्यू रखें। तो कहता है कि हमारे पास जो वी नॉट आता है ये 35 MeV है। तो 35 MeV यानी अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं यूजिंग थ्रू दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो द पोटेंशियल हैज़ दिस वैल्यू। सो इतना गहरा पोटेंशियल है, सो 35 MeV गहरा पोटेंशियल है फॉर ओनली 2 न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आप देखें तो इतने गहरे पोटेंशियल के साथ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज ओनली 2.2 MeV, इज़ मच लेस देन द वैल्यू ऑफ वी नॉट। इसके अंदर पोटेंशियल इतना था बट द बाइंडिंग एनर्जी कुड ओनली बी दिस वैल्यू विच शोज़ दैट न्यूट्रॉन इज़ अ वीकली बाउंड सिस्टम। सो अगर आप अगेन वो जो डायग्राम है उसको देखें जो कि क्रेन में थी, सो अगर आप इसको देखें, सो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई है ये 35 MeV है। इसके मुकाबले में जो हम कह रहे थे कि जो हमारा सिस्टम होता है उसकी ग्राउंड स्टेट और उसकी एक्साइटेड स्टेट जो हैं, अनलेस कि वो अनबाउंड ना हो, उसकी सारी स्टेट्स इसी पोटेंशियल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं ना। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो न्यूट्रॉन है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जस्ट 2.2 MeV है। तो ये इस पूरे पोटेंशियल वेल के बिल्कुल टॉप पे जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, -2.2। यानी अगर ये वैल्यू जो है, इफ़ आई कैन यूज़ अदर पेंसिल्स, सो अगर ये वैल्यू जो है if this value is 35 MeV minus 35 MeV and this is level 0, ठीक है, तो जाहिर है इस लेवल 0 के नीचे -1 -2 यहाँ पे करके आएगा, सो -2 जो है वो यहाँ पे करके आएगा। तो यानी ये पोटेंशियल वेल के बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है। इसको आप यूँ समझ लें कि इस पोटेंशियल वेल के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, यानी पोटेंशियल ये कि आपका सिस्टम यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, वो बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बट न्यूट्रॉन जो है वो उसके बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है। तो इसको आसानी से यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, और क्योंकि बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इतनी कम बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, तो इसकी कोई एक्साइटेड स्टेट भी नहीं है। आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे यूँ इसको आप एक और तरीके से यूँ समझ लोगे, जैसे एक वेल है, एक कुआं है, और उसके अंदर उसकी गहराई तो जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि एक पत्थर है जो बिल्कुल इस कुएं के टॉप पे पड़ा हुआ है। तो इस पत्थर को यहाँ से बाहर निकालना बहुत आसान है। हालांकि ये पत्थर इसके पैंदे में भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ भी हो सकता था, बट वो जो कि यहाँ पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही वीकली बाउंड सिस्टम है। तो ये आपके पास है ड्यूट्रॉन, और अभी हमने ड्यूट्रॉन की सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी या उसका पोटेंशियल निकाला है। हम ड्यूट्रॉन की स्पिन, पैरिटी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट वो भी देखेंगे ब्रीफली, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो
इसको आपने देख लेना है एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम।